fashion designing during that time were termed as tailors. So like a glorified tailors. So obviously my family was very apprehensive and very against of me getting into a designing. But you know what? I always wore my attitude under my sleeve. देखिए, और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कोई किसी को यूज करता है. हम अलाउ करते हैं लोगों को यूज करने के लिए. मैं ये नहीं कह सकता इसने मेरे को यूज कर लिया या इसने. हम इमोशनली एज अ एलजीबीटी कम्युनिटी हम इमोशनली इतना इन्वेस्ट करते हैं लोगों के ऊपर. People who are from LGBT communities and are successful, they are considered to be rude and उनको हमेशा बोला जाता है they use people, you know, if you want to get work from them you might have to sleep with them. That's a notion over there to the people who are straight and all of it. I believe that according to the Shastra nobody is straight. जैसे कि आत्मा जो है ना वो एक स्त्रीलिंग है. जैसे हम नहीं कहते आत्मा आता है, आत्मा जाती है. यू नो, तो इट्स टू कास्टिंग काउच किधर नहीं है. क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कास्टिंग काउच नहीं है? क्योंकि हमारी इतनी ग्लैमरस इंडस्ट्री है तो उसके ऊपर पॉइंट फिंगर्स ज्यादा उठते हैं. You know? Do you watch your memes also that goes quite viral? One of the famous one is that मम्मी है. Yes. तो अंकल मी आर वेरी क्लोज. हम मैं स्कॉन गया था तो एक आंटी आई, उन्होंने कहा वो उतना वो फेमस हो गया. बट इट्स गुड, यू नो. जैसे कि मैं ना कभी, जैसे कि मैंने एक चीज मेरा दोस्त है उसने बताया था, जो मेरी ट्रोलिंग होती है मैं कभी उसको डिलीट नहीं करता हूँ. क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप जब एक मैसेज टाइप करते हैं, उस मैसेज को टाइप करने में 20-30 सेकंड्स लगता है. किसी ने मेहनत की है. हाँ, तो मेरे लिए किसी ने मेहनत की है, उसने मेरे को इंपॉर्टेंस दी है. How was she back then? वेरी स्वीट. बहुत अच्छी है वो. यू नो, जबरदस्ती लोगों से बोलते. She is a very good girl. Yeah. You know? And I know Kangna when she was not Kangna Ranaut. You know, so I know her from many years when she came to Bombay. वो ग्लैडर्स में उसने पार्ट लिया था. वो ग्लैडर्स ने बीच में छोड़ दिया था, तब वो माइनर थी वो. एंड देन लाइक आई नो हर, शी इज अ लवली गर्ल. आपको पता है मनुष्य की लालसा का अंत नहीं है. सो आई डोंट थिंक सो आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ. देयर आर, I'm not a very talented designer. This kind of a country I come from, अगर आप अनामिका खन्ना को देखिए, आप सब्यसाची को देखिए, गौरव गुप्ता को देखिए, ये लोगों ने बहुत दिया हमारी कंट्री को. People also said you have a wig way up on your head. Is it true? No, मेरे बाल थोड़े लंबे हैं और मैं मैं विग पहनता हूँ. ओके, मैं डिफरेंट कलर का, क्योंकि मेरे को बहुत टायरिंग लगता है अपने बालों को सेट करने के लिए. मेरे थोड़े कर्ली बाल हैं. ओके, That we have never seen. नो मैं बहुत बार मैं बिना विग के भी आया हूँ मैं पार्टीज में. दैट वाज माय ओरिजिनल हेयर. How was she back then? वेरी स्वीट. बहुत अच्छी है वो. यू नो, जबरदस्ती लोगों से बोलते. She is a very good girl. Yeah. You know? And I know Kangna when she was not Kangna Ranaut. You know, so I know her from many years when she came to Bombay. वो ग्लैडर्स में उसने पार्ट लिया था. वो ग्लैडर्स ने बीच में छोड़ दिया था, तब वो माइनर थी वो. And then like I know her, she's a lovely girl. And I'm very sure you will be. I will not be shocked to see you if you get a national award for your shows. Thank you very much. You know, thank you, Adi. I'm not gonna be very shocked. Thank you very much, Adi. You're very kind. You're a lovely person yourself. Stay blessed. Stay the way you are. You know, you are a creator. You are gorgeous. You are captivating. So you are beautiful person inside out. Filmy Beat presents The Talking Stage with Ase Adi. Finally, after a dream of a year that I'll someday interview Rohit, he is in the studio of Filmy Beat. Welcoming you. How are you? Jai Shri Krishna. I'm very well. Jai Shri Krishna. You look so gorgeous. My God, how do you maintain yourself? Look at you. It is shisha to each other, I feel, you know. But congratulations, the way you organize your shows. हर बार it has something different. We were talking off the camera. We both are Krishna devotees, so that is common. At the same time, culture जो है अब जिंदा रखा आपने, जबकि आजकल तो ट्रोलिंग बहुत होती है shows की. Tell me first, how do you see the recent shows going on in India? Well, I think so. Just country say I belong. We have got so many different kind of states, you know, and every states have got their own culture. Every states have got their own tradition. So I think so. I'm very lucky to be born in Krishna Bhumi, and that's the biggest part that I'm proud to be Indian and the kind of cultures our country has got. We have got a lot to give internationally. So obviously, like, you know, designers are evolving, you know, through media, through mediums, through Instagram, through Pinterest. You know, people are, you know, budding designers taking inspiration. So I see fashion in my country booming up day by day. I think it's a very serious business. The fashion weeks, the giving platform to young budding designers, you know, and of course we take internship to these young designers, help them out to grow, to reach.
So I believe that, you know, when you give to the world the best, always best will always come back to you. That's true. But you know, the old Rohit who was in Big Boss, where somebody even threw a bottle on you, Kamal R. Khan, a lot of things went on and you were crying and sat in a corner and all of that. Tell me, when did you realize that you're meant for this industry and you took a step, कि ठीक है, अब I will be out all over, I'll talk about you know, maybe the sexuality, maybe the awareness of it, and I'll do what I want to do. Well, coming from a very technical background, you know, I'm from a very literature background. My father was a DRM in railways, and he retired as DRM. I come from a very, very literate background. So, of course, fashion designing during that time were termed as tailors. So, like a glorified tailors. So, obviously, my family was very apprehensive and very against of me getting into a designing. But you know what? I always wore my attitude under my sleeve. So I decided when I was standard 6, this is what I want to do. And this is what my happiness. Because I've been born in Allahabad, brought up in Mussoorie, coming from the UP culture, if a father is a doctor, son has to become a doctor. Father is an engineer. And that time, you know, parents were not very close to us. We never had an open heart-to-heart conversation. Because coming from a technical background, we had that kind of parameters and boundaries between parents. We were not so frank to talk about our sexuality, our, you know, what is our orientation. We were not friendly. But today's generation, if you see, today's parents are much more educated through media, to you know, a mode of conversation, good touch, bad touch being taught in the school to the kids. So things have completely evolved in my country. So I was a very level-headed kind of a person, and I was very confident this is what I want to do and this is where my happiness lies. And I think everybody's happiness is in their own hand. Either you fight your battle and achieve your dreams, or you just, you know, compromise your life. And I never wanted to compromise. I was always bold, unapologetic, and this is what I wanted to do, and I put my foot down. And academically, I was not very good. I was very below average student, and I've got no shame to say about that. And when I opted designing, my father discarded me. And 1996, 18th April at 2 p.m. I arrived Mumbai city with my head eye. And ever since, my journey has been a roller coaster. But Mumbai mein dost tha, how did you come? What was the mode of coming? Was it a train? No, I came by train. तब हम लोग रेलवे के पास मिलते थे. तो I robbed that railway pass from my father, you know, from his cupboard. And I came to Bombay. My Masi supported me a lot emotionally, and my best friend, मेरी ज़िंदगी में मेरी पहले friend मेरी मिली आती है, फिर भगवान श्री कृष्ण आते हैं. I think she's the one, like I met her for the first time, and she's the one who supported me a lot. You know, पता है मेरे को जो family का इतना support नहीं मिला जितना मेरे को दोस्तों का मिला. Like my sister Swati, I met her in 1999, 2000 मेरी दीदी से मुलाकात हुई थी, and ever since she's been like a mother to me, standing. Of course, then and my friends. तो मेरे को जो support, जो Bombay gave me a welcoming arms, you know. Bombay accepted me the way I am. I was not knowing what LGBT community or LGBT term means. I was a very feminine inside my heart. But I was still discovering myself, who am I? So जब आप अपने आप को discover करते हो, you know, अपने आप को देखते हो, तो you know, चीज़ें, you know, ये सब चीज़ें अपने, it's in your hand, कि या तो आप कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, या तो आप कमल बन जाओ या कीचड़ के साथ कीचड़ रहो. तो आई थिंक सो मैंने कभी भी अपनी फीलिंग्स को मुंबई सिटी में आके सप्रेस नहीं किया. मैं ऐसे ही था और ऐसे ही हूँ और हमेशा ऐसे ही रहूँगा. बट इंडस्ट्री उस समय शायद इतनी ओपन नहीं है जितनी आजकल हो गई है. पर मैंने खुल के, जैसे मैं आया था बॉम्बे, मैंने गाउन्स भी पहने, मैंने ड्रैग भी किया. एक वुडूस जिसको होता था वहाँ पे हम जाते थे. अब तो यू नो अब तो बंद हो गया. एंड मैंने ज़िंदगी के बॉम्बे ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया लाइफ में. एंड पर मैं बार बार कहता हूँ कि इंसान की खुशियाँ उनके हाथ में है. आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको अपनी खुशियों कैसे हाथ में रखना है. तो आई वॉज वेरी लेवल हेडेड एंड आई ऑलवेज लिव्ड माई लाइफ विद माई टर्म्स एंड माई कंडीशंस, एंड आई एम स्टिल लीडिंग the way I want. But Rohit, I totally get it. You are a successful designer, है ना. आपने लोगों को बहुत बड़ा भी बनाया है. I was talking to you know people कल ही जब I was saying that I'm gonna interview, and
So of course when they ask who's Rohit, मैं कहता हूँ Rohit the designer who make people. That was my next line. That is what you have achieved. But the vacuum in heart is always there. जी. You know, प्यार, धोखा, ठगी, ये सब बहुत होता है. We all know what happens in this industry. Tell me your journey on that. Were you in love? If you were in love, कैसे deal किया? You know, how did you get over it? And what is your state of mind in love right now? Adi, I'm sorry, I beg to differ over here with your question. मैं ये सोचता हूँ कि मैं कोई नहीं होता किसी को बनाने के लिए, वो ऊपर वाला बनाता है. That is बड़प्पन, but You know, you at least मैं एक जरिया हो सकता है. होता हूँ. देखिए, और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कोई किसी को यूज करता है. हम अलाउ करते हैं लोगों को यूज करने के लिए. मैं ये नहीं कह सकता इसने मेरे को यूज कर लिया या इसने. हम इमोशनली एज अ LGBT कम्युनिटी हम इमोशनली इतना इन्वेस्ट करते हैं लोगों के ऊपर कि हम सामने वाले के ऊपर हम इतना सोचते हैं कि. पर मेरे को पता है, मेरे को तब मैं थोड़ा बचपना था मेरे में, अब मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया हूँ. उस टाइम पे हमको रियलाइज होता है कि हमको उतनी ही चादर फैसाड़ने जितनी चादर में जगह हो. ओके, हम इमोशन इन्वेस्ट कर देते हैं. किसी को, कौन से बंदे को पैम्परिंग अच्छी नहीं लगती, कोई उसके लिए खाना बनाए या उसके लिए करवा चौथ रखे या उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आए. एवरीबडी लाइक्स टू गेट पैम्पर. इवन आई वुड लाइक टू गेट पैम्पर. इवन यू वुड लाइक टू गेट पैम्पर. तो किसी जो मेरा इमोशनल वॉइड रहा है, जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ, जिनको मैंने ऑब्वियसली जो आज बड़े स्टार्स बन गए हैं, मैंने हमेशा उनके लिए अच्छा ही चाहा है. यही मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरे को मैं उस दिन एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलते हो तो आप उसके पापों को कम कर रहे हो. लॉर्ड कृष्णा हैज सेड दैट कि मोर यू विल टॉक बैड अबाउट समवन, यू आर डिक्रीजिंग द कर्मास ऑफ दैट पर्सन. सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर इंसान बहुत अच्छा होता है. हर इंसान के अंदर एक अपना कॉन्शियसनेस होता है. आपको अपने अंदर डिस्कवर करना है कि या आप अपने कॉन्शियस में आप उसमें ढह जाएं और या आप उसके ऊपर जीत जाएं. तो आई ऑलवेज बिलीव दैट लाइक लाइफ इज नॉट वेरी लाइक इजी फॉर अ LGBT कम्युनिटी. इट्स टफ. इससे देखो, हमारी जो कंट्री में अभी भी काफ़ी एक्सेप्टेंस हुई है, पर अभी भी प्लेस लाइक जबलपुर, कटनी, सतना, ये छोटे छोटे शहर हैं, उधर कितने आदि हैं, कितने रोहित वर्मा हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स को सप्रेस कर लिया बिकॉज दे कांट टॉक इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स. दे विल नॉट अंडरस्टैंड. Of course, metropolitans are, of course, we are growing up. We are talking about LGBT community. We are having an interview. We are having an open discussion about sex and everything. I think this is the medium where you give inspiration to others. That's true. But still, are you single right now? Yes, I'm single. Happily, अभी छोड़ दिया प्यार का रास्ता अपनाना? मैंने ये सोचा कि जो क्वींस होती हैं और जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता. इनके घर नहीं बसते हैं. तो इसके ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा समझौता कर लीजिए, आप अपने इमोशन इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप उसमें फंसेंगे, फिर आप रोएंगे. एंड आई बिलीव कि अगर कोई मिस्टर राइट है मेरे लाइफ में तो वो डेफिनेटली मेरे दरवाज़ा का ज़रूर खटखटाएगा. सो मैंने प्यार के पीछे भागना बंद कर दिया है. आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन माई वर्क राइट नाउ, ऑन माई फिजिकल अपीयरेंस. आई वॉन्ट टू डू लॉट फॉर द सोसाइटी. I think all my life I have lived for others. मेरे को कोई बच्चे पैदा करके स्कूल नहीं भेजना है. मेरे पास कोई, पर ये जो मेरे कारीगर्स हैं यही मेरे बच्चे हैं, जो मेरे मास्टर्स हैं यही मेरे बच्चे हैं. इनफैक्ट मेरा एक शो आने वाला है, चेंज द क्लैप, जो मैं अब रिलीज करने वाला हूँ. एंड इट्स अ वेरी इमोशनल शो आदि. एंड डेफिनेटली इट्स अबाउट द रियल हीरोज बिहाइंड एवरी डिजाइनर. I am just goosebumps के साथ भर गया है मेरा पूरा शरीर. Because of course I love the fact है ना, इतना culture, इतनी unique thinking with the shows. Nowadays it's difficult, in the era of 30 seconds everybody's scrolling up and it's gone. Yes. But you still put a lot of efforts and make a film out of it. Yeah. कि मेरी film है और आप देखेंगे. We cannot skip Rohit Verma. That is Thank you. true. But at the same time, Rohit, of course, people who are from LGBT communities and are successful, they are considered to be rude, and उनको हमेशा बोला जाता है they use people, if you want to get work from them, you might have to sleep with them. That's a notion over there to the people who are straight and all of it. I believe that according to the Shastra, nobody is straight. जैसे कि आत्मा जो है ना, वो एक स्त्रीलिंग है. जैसे हम लोग आत्मा आता है, आत्मा जाती है. तो इट्स टू कास्टिंग काउच किधर नहीं है? क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कास्टिंग काउच नहीं है? क्योंकि हमारी इतनी ग्लैमरस इंडस्ट्री है, तो उसके ऊपर
पॉइंट फिंगर्स ज़्यादा उठते हैं, you know. So I believe that, you know, everybody has got the mindset of their own, everybody is intelligent enough. यहाँ पे रेप तो नहीं होते, जो होता है रजामंदी से ही होता है जो होता है. तो I believe that, you know, बहुत ईजी होता है किसी के ऊपर आप उंगली उठा देते हैं, पर आप बिलीव करिए आप जब किसके ऊपर उंगली उठाते हैं 4 उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं उसको. तो आई बिलीव दैट nobody use anybody, you know, nobody can use anyone till the time, you know, somebody wants to take a wrong cut, somebody wants to take a shortcut. So I always believe that कि आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, you know, आप वो करिए, you know. अगर आपके पास टैलेंट है, you have got talent, you have got looks, nobody can stop you. That is true. How do you decide your showstop? So what is your way of deciding that? Because of course there are too many people, including me, trying to be part of your shows. मैं कभी ऐसा डिसाइड नहीं करता हूँ. एक थीम होती है, जैसे मैंने अभी गिद्दा किया था, तो गिद्दा में पहले मेरी विपाशा बासु बहुत कर रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली उनका एक हादसा हो गया. फिर मैंने हुमा मेरी पहले की चॉइस थी, क्योंकि मेरे को भरी भरी चाहिए थी. गिद्दा वाज ऑल अबाउट भरा भरा. एंड उससे पहले मैंने सो आई थिंक शी सूटेड बीइंग माय शो स्टॉपर. एंड ऑफ कोर्स जायद तो इज लाइक अ ब्रदर टू मी, तो ही वाज पार्ट ऑफ इट. एंड इससे पहले मैंने जब इंद्रधनुष किया था, वो LGBT कम्युनिटी होता है, उसमें ताली रिलीज हुई थी सुष्मा दीदी की. तो मैंने जब उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा रोहित आई एम देयर विथ यू फॉर दिस शो. सो इट डिपेंड्स ऑन द थीम, यू नो. जो थीम होती है उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कौन जा रहा है, आई मेक अ कॉल. Also, is it like important to have showstopper जिसके ऊपर बहुत सारी आई बॉल्स हों ताकि शो सही जगह तक पहुँचे and all of that? मैं इतना इस चीज़ को बिलीव नहीं करता. आई थिंक एक रियल शो स्टॉपर्स जो होती है वो मॉडल्स ही होती हैं, यू नो, बिकॉज दे आर द वन. क्योंकि हमको एक कपड़ा बनाने में 6 महीने लग जाता है, और मॉडल्स के पास 60 सेकेंड्स का टाइम होता है. एक डिज़ाइनर के लिए, जो लोग सोचते नहीं है, एक डिज़ाइनर्स के लिए एक पूरा शो एक शादी की तरह होता है. ओके, आप अपने बच्चे को पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, अपनी बेटी को पैदा करते हैं, उस बेटी को आप अच्छी तालीम देते हैं, फिर उसको आप विदा करते हैं. सामने डिज़ाइनर्स की भी जर्नी हो होता है. आप कपड़ा खरीदते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, फिर उसको आप शो में आप इन्वेस्ट करते हैं. ये फैशन शो था वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, इट्स नॉट वेरी चीप अफेयर, यू नो. देन यू नीड अ प्रॉपर मॉडल्स टू शोकेस, you know. And if your garment is not girls are not able to carry gracefully, or they are not technically very good handling the garment, then that 60 second go wasted. तो आप ये सोचिए, आप एक मॉडल नहीं है, आप एक डिजाइनर के इमोशंस को कैरी कर रही हैं 60 seconds के लिए. तो इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिजाइनर, बिकॉज दैट डिजाइनर पुट्स हिज हार्ट एंड सोल फॉर 6 months. तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल मोमेंट फॉर अ डिजाइनर. How do we reach out to you to be model of your shows? What is that process? If you take out people from डार्लिंग, मैं तो किसी को भी फ़ोन, किसी भी एजेंसी को फ़ोन कर देता हूँ. सो मेनी पीपल, आई जस्ट कॉल माई फ्रेंड्स, दे डू इट फॉर मी, फॉर माई शूट्स, फॉर माई शो. समबडी पीपल कीप DM मी ऑन Instagram, somebody keep on sending me. मेरा ईमेल आईडी खुला हुआ है, पीपल सेंड मी, कीप ऑन सेंडिंग. मैं रोज़, मेरे को 10-15 ईमेल आती हैं, तो जो मेरे को लगता है कि येस आई कैन डू इट, लाइक इफ दैट पर्सन इज सूटिंग. एंड पर कभी कभी कोई वो एक अंकल, बुढ़े अंकल भी पिक्चर्स भेज देते हैं कि मेरे लिए ये करते हैं. मैं बोलता कि सर, you make a show for them, the old show. I have used old people in my show. Vrid was my collection. Oh yes. Vrid I did ना with Bombay Times, जब उनका डिजिट हुआ था, वो पूरा old था. We celebrated that age is just the number. So I have done. Then of course in Sindoor Khela, Kalpana Gandhi walked my show. She is also 80-90-year-old woman who opened my Sindoor Khela. तो I also use plus size models. मैंने LGBT कम्युनिटी को चलाया, मैंने ट्रांस को चलाया है, मैंने सबको I have made asset victim walk. So you know, my doors are open for everybody. And it is very good that you have so many things, you know, you've done many and you're still looking out to what next I'm doing. Yes. You know, what is a new thing that will become a talk of the town and with a good message at the same time. That is commendable. But Rohit, do you go back and sit and talk to yourself about the old days that you've been into, where you know, the dreams जो सिर्फ सपने थे अब हकीकत में हैं वो? आपको पता है, मनुष्य की लालसा का अंत नहीं है. सो आई डोंट थिंक सो आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ. आई एम नॉट अ वेरी टैलेंटेड डिजाइनर्स. जिस काइंड ऑफ अ कंट्री आई कम फ्रॉम, अगर आप अनामिया खन्ना को देखिए, आप सब्यसाची को देखिए, गौरव गुप्ता को देखिए, ये लोगों ने बहुत दिया हमारी कंट्री को. मैं इनके पैर की धूल भी नहीं हूँ, यू नो. एंड आई बिलीव दैट आई हैव टू स्टिल
जो knowledge होती है, knowledge is always incomplete. Every day you have to learn. People say I'm a good designer, but I believe that I have to learn a lot. I have to, every day is my journey. Every day we have to learn new techniques, new thing, And I think Lord Krishna has blessed everybody with talent. Everybody's thing. It's just you have to discover it. तो जैसे कि आप पढ़ाई, आप एंड तक जब इंसान मरता है ना, वो पढ़ता रहता है. एक हर कुछ नॉलेज होती है. बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं होगी, काफ़ी चीज़ मैं आपसे सीखूंगा. तो एवरी डे इज अ लर्निंग पीरियड. तो आई डोंट थिंक सो आई एम दैट सक्सेसफुल एंड आई एम सो नॉलेजेबल. देयर आर genius ahead than me. अगर आप जापानीज डिजाइनर को देखिए, oh God, Japanese designers are so talented. If you see Japanese designers, you see Filipino designers. But हमारे कंट्री में भी इतने टैलेंट छुपा हुआ है. आज आप दिल्ली चले जाइए, हर गली में मंजू आंटी नुक्कड़ बैठी हैं, ऋतु आंटी बैठी हैं 2 मशीन लेके, एंड दे आर डूइंग फैबुलस जॉब. आई वेंट टू शाहपुर जाट एंड आई सॉ द डिजाइनर्स. Oh my God, my jaw dropped out. So much of talent in my country, and ये जो बच्चे आ गए हैं, पर्ल अकेडमी के निकल रहे हैं, निफ्ट से निकल रहे हैं, क्या टेक्निक्स है उनके पास, तो एवरी डे इज अ लर्निंग. हमको छोटे से भी सीखने को मिलता है. So I always believe that you keep on learning. What is your plan for Cannes? Plans for? Cannes. Well, अभी तक तो इन्विटेशन नहीं आया है आदि. तुम दिला दो मेरे को. अभी तो जब जिस दिन आएगा पहुंच जाऊंगा रेड कार्पेट पे. But no, they have this special influencer category also, I guess, that can be done. Actually, I have never applied for that. I have never got the invitation. If I get But it, I'll you'll go. be taking us to next level. I'm very sure on that. Thank you very much. God is Which look did you like the most from this Cannes? Which? कौन सा look सबसे ज़्यादा पसंद आया? But I like what Janvi wore. I was expecting much more Aishwarya because she looked very good in the white sari of Manish. But I was expecting more. I loved Nancy Tyagi. See, Nancy Tyagi, I think she is. I love her, that girl. But people, I came to know she sold some clothes in internet में जो I think नेहा ने पहना था, नेहा बसीन में. I think everybody is talented, but Nancy अच्छी लड़की है. She's a very nice girl. She's doing very well for herself. I really have a lot of respect for her. But जब मैं रेड कार्पेट पे देखता था, I expect more. I expect That is globally. yeah, exactly. I expect more traditions of India. Okay, जैसे हमारे पास जितने फैब्रिक्स हैं, मैंने आज तक किसी को बनारसी के ऊपर गाउन बनाते हुए नहीं देखा है. I will expect my बनारसी fabric to be constructed in a gown. जैसे कि आपका अमित अग्रवाल करता है. Amit Agarwal used a lot of Banarsi fabric and create an outfit of it. That is called talent. That is the culture should be represented into the red carpets and serious affair like Cannes. आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल हकीकत है. Even I agree to your points that India should be more visible globally. Exactly. That much. Rather with the cuts and all of that. Exactly. That is so true. But oh my God, too many things you've come up with, and my brain is fogging right now. What to talk and what not to. Do you watch your memes also? That goes quite viral. One of the famous one is that मम्मी yes. तो अंकल and me are very close. मैं ISKCON गया था, तो एक आंटी आई, उन्होंने कहा उतना वो फेमस हो गया. But it's good, Yeah. जैसे कि मैं ना कभी, जैसे कि मैंने एक चीज मेरा दोस्त है उसने बताया था, जो मेरी ट्रोलिंग होती है मैं कभी उसको डिलीट नहीं करता हूँ. क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप जब एक मैसेज टाइप करते हैं, उस मैसेज को टाइप करने में 20-30 सेकंड्स लगता है. किसी ने मेहनत की है. हाँ, तो मेरे लिए किसी ने मेहनत की है, उसने मेरे को इंपॉर्टेंस दी है गाली देने के लिए, और मैं उसको हमेशा थैंक यू और हरे कृष्णा बोलता हूँ. तो हमेशा अपने जो ट्रोलिंग है उसको मैंने ज्वेल बना लिया है. यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक ट्रोलिंग नहीं होती है तो मजा नहीं आता है. जैसे मेरे फ्रेंड कहते हैं डिलीट करो, हाँ कहा मेरी ट्रोलिंग कभी डिलीट मत करना. लाइक आई ऑलवेज टेल माय सोशल मीडिया, डोंट डिलीट द ट्रोलिंग, बिकॉज ट्रोलिंग इज समथिंग दैट योर पीपल आर गिविंग इंपॉर्टेंस. यू आर गिविंग someone a reason to talk about you in a good way or a bad way. बातें तो हो रही हैं ना. People also say that you have a wig way up on your head. Is it true? No, मेरे बाल थोड़े लंबे हैं और मैं मैं विग पहनता हूँ. ओके, मैं डिफरेंट कलर का, क्योंकि मेरे को बहुत टायरिंग लगता है अपने बालों को सेट करने के लिए. मेरे थोड़े कर्ली बाल हैं. ओके, That we have never seen. नो मैं बहुत बार मैं बिना विग के भी आया हूँ मैं पार्टीज में. दैट वाज माय ओरिजिनल हेयर, बट उसको सेट करने में आई हैव टू गो टू सैलून, spend 2,000 rupees. It's better to like why to go, and I am a social butterfly. महीने में मैं 20 दिन बाहर रहता हूँ, तो obviously it's better you do roll your hair and just wear a wig and just get out. So this is your this is my spray. I have put a white spray
on the black hair. Oh, wonderful. And this is your staple Yes. identity that you have. Yes. Rohit Verma की पहचान उनके बाल हैं. That is there. But we kudos to you the way you are, keeping things very straight and going ahead with it. कि भाड़ में जाए प्यार, दुनिया and all of that. Do you remember the biggest rejection that you've ever got? कोई line जिसको सुन के दिल चूर चूर हो गया हो types? देखो रिजेक्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल द LGBT कम्युनिटी. जब तक रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो आप कैसे जिएंगे, सो अब मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप अपने रिजेक्शंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, ओके, तो अगर आप रिजेक्शंस को के बारे में सोचते जाएंगे तो यू गो इन डिप्रेशन. You get my point? So I always believe that rejection is part and parcel of life. ज़रूरी नहीं है सब लोग आपको प्यार करेंगे. True. आपको अगर 50% लोग प्यार करेंगे तो 50% रिजेक्ट भी करेंगे. तो आप पॉजिटिव साइड देखो, 50% तो आपको प्यार करते हैं ना. So you can't like tell people to accept you or don't reject you. Rejection is always, Lord Krishna says, part and parcel of life. So what is the current state? Your family is fine with you right Yes, now? yes, yeah. I lost my dad many years back. My mom, yeah, they're all fine. They have no choice to accept me rather. So yes, so everything, God has been kind. What all shows coming in? We are all waiting for that. So I am doing, अभी तो मैंने shows कर लिए दो. अभी मेरा सितंबर में एक show plan हो रहा है. I've just got a call that I'm going to go to London for a show. Then of course, then I will come back. तो shows का क्या होता है? Shows तो big, phone तो रोज बजता रहता है. But I don't want to be taking every project, something meaningful, something good where I can get good business and can give a message to society. मैं अपने collections repeat नहीं करता हूँ. If I have displayed one collection, I will never repeat it unless I'm going internationally, because then I have to sell the clothes. So I always showcase a new collection in India. So अभी मेरा next collection बन रहा है, which you will be seeing very soon. Also, please make us understand, how this fashion world ramps goes on the floor, like, and what all it takes, how much money it requires. Somebody who's up for starting it, or somebody who's watching you at home. What is all it takes? Sky is the limit, collection. अगर आप couture कर रहे हो तो couture will go into lakhs, अगर आप pret कर रहे हो, आप depends कि आप क्या collection launch कर रहे हो. It's all collection to collection. जैसे I do luxury pret, so my collection also, luxury pret is also expensive collection because of fabric, dyeing, printing, embroideries, it's all cost a lot of money. So depends that what is your depth of your investment. So कोई लोग आप अपना 2 लाख में भी collection बना लेते हैं. Sustainable fabrics. So it depends how talented you are, where you're sourcing your fabric, your karigar. But masters and karigars are not cheap anymore in my country. Everybody's increasing the price. महंगाई बढ़ रही है. So obviously, and you have to give them, because they are the real heroes. They work for you around the clock. That is one thing. And how much do you give to a model? Like, what is the payment to be done to them? So payments of the models anyways start from 12,000 up to 60,000 rupees. So depends on each models to models. So And the showstopper gets, like, basic, what is the showstopper? Every showstopper got different rates. So like depends which one you can afford and which one you can And if get. some of them, if they are your friends, they come in. See, usually क्या होता है, everybody, the fashion shows में everybody, it's all about the relationship. How today, Adi, if I'm telling you, please walk my show, you're not going to ask me certain things. You will do for me because you're my friend. So simultaneously to each to his own. आपके relationship कैसे industry में that works. That is there. कभी ऐसा हुआ है कि before, are you nervous always before the show goes on the floor? डर लगता है आपकी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए? Nervous मैं shows के हाँ कभी कभी हो जाता है मेरे को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पर टेक्निकली जैसे मेरे शोज में ना लॉर्ड कृष्णा के खुद ही रैंप पे बैठ जाते हैं. मैंने हमेशा ये नोट किया है कि मेरे जो शोज होते हैं इतने वायरल होते हैं और इतना लोगों को पसंद करते हैं. बहुत ड्रामा मैं करता हूँ, फ्रॉम द इन्विटेशंस टू गेटिंग द पीपल ऑन द रेड कार्पेट एंड पीपल लुक फॉरवर्ड फॉर माई शो. ओके, तो मेरे को जब इसका जब शो से पहले मेरे को बहुत नर्वसनेस होती है. ओके, पर मेरे साथ इतनी स्ट्रॉन्ग थीम है. माई वेरी क्लोज फ्रेंड रेहान शाह, ही स्टाइल्स माई शो फ्रॉम लास्ट 10 years. He's been styling. He understands what I'm looking for. He knows my vision. My choreographers, like Lokesh Babis and Lubna does my choreography. Like James always does my backstage. So these are my team which I work with, and
they understand my vision, they understand me as a person, they understand my emotions, you know. And I am a super emotional person when it comes to my shows. So obviously, when your vision, when your team is very strong, okay, when your team is good, then of course your show will become larger than life. And obviously, you know, shows to mere hit you because my music, drama, itna log karta I love the hu. music also. I love you for the music that you put in. Yes, so like it's all, वैसे मैं बोलता हूँ मेरा साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं मेरे शो में, तो that works for me. फैशन फिल्म आपकी फेवरेट है? फैशन फिल्म मेरी बहुत फेवरेट है बिकॉज ऑफ कोर्स मधुर इज नेम मेरे को, मैं आई एक्टेड आल्सो इन फैशन, Yeah. 2-3 सीन काट लिए थे उन्होंने मेरे. हाँ? यस, बट द थिंग इज दैट इट्स गुड फिल्म, बट मेरे को एक ही चीज नहीं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग्स इन द मूवी वाज शोन टू मच. इतना हमारे इंडस्ट्री में ड्रग्स है नहीं, इतना दिखाया है उसको, पर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पिक्चर को थोड़ा को आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा मसाला देना पड़ेगा. बट ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सेंटिमेंटल मूवी फॉर डिजाइनर्स एंड द मॉडल्स. दैट्स ही इज डन अ फैब जॉब. ऑफ कोर्स कंगना किल्ड इट, मुग्धा डिड अ वेरी गुड जॉब, Priyanka also, you know. So she got a Best Actress award for that. Yeah. Did you meet Kangana on the sets during the Yes, shoots? yes, yeah. How was she back then? Very sweet. बहुत अच्छी है वो, you know, जबरदस्ती लोगों से बोलते. She's a very good girl. you know. Yeah. You Even know, I met and I know Kangana when she was not Kangana Ranaut, you know, so I know her from many years when she came to Bombay. वो Gladiators में उसने पार्ट लिया था, वो Gladiators ने बीच में छोड़ दिया था, तब वो माइनर थी वो, and then like I know her, she's a lovely girl, you know. But You never approached her for the show, or have you done a show with her? no, she has walked my show. Oh, wonderful. Fashion के बाद उसने मेरा show, she was a showstopper. She's walked my show. उसके बाद now she's gone into politics. I think she's taken a step back from fashion. But will you be still approaching her if she's up? If she agrees, nothing like it. She's a perfect showstopper. She's a lovely girl. Recreating the fashion. Yes, wala yeah. She's lovely. Sonali Gujral's thing. Oh my God. But that's true. Like the way Kangana was, you know, having drugs and then walking on the. वो हुआ था ना उसका एक मॉडल थी, ऐसा हुआ था. I think that part they took from that she was. But ये अभी नहीं होता ना. नहीं, अभी सब सेंसिबल हो गए हैं इतना. तुम भी देखो कहाँ से बच्चे से कहाँ आए तुम, चंडीगढ़ से. नाउ यू आर इंटरव्यूइंग मी. तो पीपल इवॉल्व, यू नो, पीपल इवॉल्व. ये सब बेवकूफ़ियाँ पहले होती नहीं. अब देखो कितने थेरेपिस्ट हैं, दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की हम लोग मदद करते हैं. देखो फैशन इंडस्ट्री एंड ग्लैमर इंडस्ट्री हैज गॉट लॉट ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो, यू नो. यू पर्सन शुड नो हाउ टू डील विद दैट. इफ यू डील विद योर डिप्रेशन देन यू आर अ स्टार. इफ यू कांट डील विद योर डिप्रेशन देन यू ऑफ कोर्स यू विल. तो आपको वही तो कहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए. कोई अब देखो मॉडलिंग जो है वो करियर नहीं हो सकता किसी के लिए. तो यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी विद प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी. You get it? If not modeling, then what? It cannot be your lifelong career. Then you get into acting. Acting भी अगर आप हिट हुए तो हिट हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए. तो you have to be sensible, you know. जैसे मेरा एक फ्रेंड है, he is a very sensible guy. वो मॉडलिंग के साथ साथ ऑर्गेनिक अपने ये वेजिटेबल्स का और किसका उसने अपनी बिजनेस सेट किया है उसने अपना. He's smart. He's making this देसी घी बेच रहा है, अच्छे से कर रहा है. या बेच रहा था. It is a sensibility, you know. बट सबसे ज्यादा ना नाम बदनाम है अगर इंडस्ट्री में किसी भी सेक्शन का ऑफ आवर इंडस्ट्री इज मॉडलिंग. कोई लड़का बोल देना कि यार आई वांट टू बिकम अ मॉडल, ही लुक्स गुड, ही हैज एब्स एंड ऑल. वी ऑल नो दैट वी गेट सच डीएम्स ऑन डेली बेसिस. इवन मी फॉर दैट मैटर. मुझे तो समझ नहीं आता व्हाई पीपल आर अप्रोचिंग मी. ही इज द राइट गाय, गो टू हिज गेम, स्पैम हिम लाइक एनीथिंग. आई हैव गिवन यू द गाय टुडे, प्लीज डू इट विद हिम. नो, ये बहुत होता है. पीपल आर आफ्टर माय लाइफ, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव गॉट ऑडिशन. भैया मेरे को मिलते तो मैं ना कर लेता, मैं ये सब छोड़ छाड़ के चला जाता. नहीं, सो इट्स लाइक दैट. तो सबसे ज़्यादा बदनाम है मॉडलिंग के. लड़कों के लिए तो बहुत ही पिच्ची है, यू नो, दे मेक यू स्लीप देन आस्क फॉर वर्क. ये तो बहुत ही मिथ है. जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, तो बट होता है. यू एग्री दिस? देखो होता है या नहीं होता है, देखिए अल्ट कोई सत्ता सावित्री तो है नहीं यहाँ पे, यू नो. कौन कह दे कि मैं दूध का दूल्हा हूँ, यू नो. तो मैं, पर जो लोग ये सब फालतू की बकवास करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं. देखो मैं क्या कहता हूँ, कोई किसी को जैसे मैंने कहा, नोबडी कैन फोर्स एनीबॉडी. जो होता है रजामंदी से होता है. और मैं सोचता हूँ ये चीज कहाँ नहीं है. एवरीवेयर, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है, एवरीवेयर. क्योंकि हमारा ग्लैमर इंडस्ट्री थोड़ा सा बेबी मीडिया में है, हम लोग है, तो हम लोग ज्यादा बदनाम है, यू नो. कोई किसी को नहीं छोड़ता, यू नो. आई विल टॉक अबाउट वन डायरेक्टर, आई एम नॉट गोइंग टू नेम हिम. एवरीबडी एक्यूज्ड हिम, यू नो. साजिद खान. नहीं, मैंने नाम नहीं लिया बाबा. ठीक है, फिर
कोई और भी हो सकते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि आपको अक्ल नहीं है, आप उनके घर जा रहे हो, बैठ रहे हो, कार से घर से निकले, तैयार हुए, कोई आपको बेडरूम में बुला रहा है, आप क्यों जा रही हैं फिर आप किसी भी इंसान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इट्स नॉट राइट, यू नो। आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ ऑल दैट थिंग, यू नो। अगर आपकी लिमिट इतनी है, ओके, तो आप अपनी लिमिट को उतना रखिए। किसी को देखो, सबके के अंदर एक कॉन्शियसनेस होता है, एक कैरेक्टर होता है। हाँ, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, हालात एंड सर्कमस्टेंसेस इंसान को बुरा बनाते हैं। यू नीड माई कॉन्शियसनेस इज क्लियर, ओके। मैंने कभी भी नहीं कहा कि ओके आई विल मेक यू अ स्टार, ओके। आप मेरे कपड़े में अच्छे लगते हैं, ओके, आप मेरे को अच्छे लग रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली आप मेरे शो में आइए, बिकॉज मेरे को भी एक अच्छा मॉडल चाहिए, मेरे को अपने गारमेंट बेचने हैं, यू नो। अब आपके पास ना शक्ल है ना सूरत है, और फिर ना आप कहो कि नहीं आप मेरे को डालो अपने शो में, फिर आप, बहुत से लोग मेरे पैर पे भी गिर जाते हैं आदि, एंड आई गेट इन टू द स्पॉट कि मैं कैसे, आई कांट बी सो ब्लैंड कि डार्लिंग यू डोंट इवन सूट, यू नो। पर लोगों को भी समझना चाहिए कि अभी भी मॉडलिंग लगता है रैंप बस करना है, शो करना है, कपड़े पहनने हैं, ये करना है। I think everybody have to realize it's not a very easy job. You have to work on yourself. You have to have a proper diet. Your skin has to be good. You need to look good. You need to fit the garment. You know, and then you know, and obviously मैं सोचूं जिसमें अगर तुमको अपने ऊपर विश्वास है, एक ही इंसान की ब्लेसिंग्स लगती है, दैट इज योर मदर्स ब्लेसिंग। अगर आपके माँ का ब्लेसिंग है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। यू हैव टू बिलीव इन दैट, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू नो, रादर पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन अदर्स कि ओके इसने मेरे साथ ये कर लिया, कोई कुछ यूज नहीं करता, तुम भी खुद तो यूज होने आ रहे हो ना सामने से। As simple as that. But when good-looking people who've got apps and you know they try showing you that they have affection for you, how do you deal with that? Of course, people do try, ना? अभी भी करते होंगे। हाँ, ये बोलते हैं बेबी तुमने खाना खाया, कितनी प्यारी लग रही हो, मैं तो इग्नोर कर देता हूँ, मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ जब कोई फालतू की बकवास शुरू करता है। आई ब्लॉक, एंड ब्लॉक इज समथिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बटन फॉर मी। वंस आई ब्लॉक देयर इज नो लुकिंग बैक इन माय लाइफ, यू नो। आई नेवर ब्लॉक इवन माय एनिमीज, यू नो, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वर्स्ट थिंग वन ह्यूमन कैन डू टू अनदर ह्यूमन बीइंग। सो अभी है, लोग बोलते हैं तू, जैसे मैं कहता हूँ कि, पर देखो उनको भी काम चाहिए ना, थोड़ा बटर पॉलिश तो करेंगे ना डिज़ाइनर्स की, तो उनको भी काम चाहिए। मैं उनको ब्लेम नहीं करता उनको उस चीज़ को करके कि अगर बेबी टाइप करने में क्या हर्ज लगता है, हाउ आर यू डूइंग, वेरी प्रिटी और लुकिंग, मैंने तो उस पार्टी में देखा, यू लुकिंग गॉर्जियस, लेट्स मीट फॉर अ कॉफ़ी, आते हैं प्रपोजल्स इस तरह के आते हैं। वो मेरे ऊपर है कि मेरे को किसको अटेंड करना है, किसको नहीं। तब किसको करते हैं किसको नहीं? Someone who touches my heart, someone, see मेरे को ना थोड़े इंटेलिजेंट लड़के अच्छे, मेरी चॉइस बहुत कॉर्पोरेट है, मेरे को कॉर्पोरेट लड़के अच्छे, बैंकर टाइप्स के लोग। like I like corporate guys. See, sex is just a 15-minute pleasure आदि, okay? The conversation between two people is very important. तो यही मेरे सारे गे फ्रेंड हंसते हैं, इनको तो बातचीत अच्छा ही है। तो फॉर मी कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इट्स वेरी, कि जैसे मैं 4 चीजें उनसे सीखूं, वो 4 चीजें मुझसे सीखें, एंड आई एम अ वेरी वेल स्पोकन पर्सन, यू नो, आई एम अ वेल रेड पर्सन, आई नो माई सब्जेक्ट वेरी वेल, ओके। सो आई डोंट वांट, यू नो, कि मैं किसी डफर के साथ बैठा हूं। ऑफ कोर्स, यू नो, मैं नहीं डील कर सकता, यू नो, इलिटरेट्स को, यू नो, कि अरे हम तो मार डाले, हम तो आ गए, यू नो, आई कांट डील विद पीपल लाइक दैट। So for me, conversation is very, very important. That lead to romance for me. आपके ब्रेकअप के रीजंस क्या रहे हैं हमेशा? नहीं, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया है, मेरे को डंप कर देते हैं उठा के। And what they've said you, given any like closure to you on that? See, I'll tell you, all men in my life, straight men, I have always dated straight men. Yeah, अब क्या, ये बात तो सच है। जैसे कुछ मेरे बॉयफ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने जिनके संबंध सब मेरे साथ ही रहे हैं, you know, they fall in love with me because I am a very loving person, I am a very caring person, I am a very, आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने रखिए, मैं उसका 2 मिनट में हल कर दूंगी। I am a very giving person, okay? So obviously they get very emotional with me, okay? But since, you know, obviously they have got their own limitations, you know, कोई ऐसा नहीं कि मेरे रिलेशनशिप्स को, मेरे रिश्तों को मैंने कभी अपने घर से बाहर लेके गया हूँ, मैंने कभी नहीं बात किया। आई डोंट गॉसिप, आई डोंट लाइक टू गॉसिप। आप अपने डार्केस्ट सीक्रेट मतलब शेयर करिए, मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, ओके? वो मेरी एक पर्सनल है। यस, मैं अपनी बहन के साथ बहुत शेयर करता हूँ सब कुछ,
माई सिस्टर जो मेरी बुरी बहन है, मैं उनसे सब कुछ शेयर करता हूँ. शी नोज मी इन एंड आउट, यू नो. बिकॉज एक पर्सन ऐसा है कि जब मैं इमोशनली ब्रेक डाउन हूँ तो एटलीस्ट आई हैव गॉट सम मेंटल सपोर्ट टू इट. तो इसीलिए आई थिंक ये जो रिश्ते होते हैं लोगों को शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, फिर बाद में क्लॉस्ट्रोफोबिक होने लगता है उनको, तो वो डंप कर देते हैं, तो मैं डंप हो जाती हूँ. It's a part and parcel of life. पर बड़ा मुश्किल है ना, एक बार डंप होने के बाद then you again make yourself strong to fall in love again. ये तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस. देखो क्या होता है ना, what is love according to you? What is the full form of love? That is of course non-definable. Like No, you can define love. Land of sorrows, ocean of tears, valley of death, end of life. LOV. That is love is all about. So it's up to you. If you invest your emotions in stupid people, you are going to get. और आज की जिंदगी में प्यार बचा कहाँ है? क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार है? नहीं है. ये सब समझौता है. लड़कियों ने भी धंधा बना रखा है, लड़कों को पकड़ो, 6 महीने के बाद उसको डिवोर्स दो, एलिमनी लेके बैठ जाओ. यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आज ना जो मैं देखती हूं कि हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो गई है, लव बचे ही नहीं है. यू नो, हर एक समझौता है, हर एक बिजनेस है. यू नो, तो या आप अपना दिमाग यूज करो और इमोशनल बह जाओ, या यू बी स्ट्रांग. आपका स्ट्रांगेस्ट. मैं भी बीच में बहुत टूट गया था. यू नो, आई हैव गॉन टू अ वेरी नर्वस बैकग्राउंड. यू नो, मेरे जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें हो गई लाइफ में, पर मेरे को खड़ा होना पड़ेगा. You know, I have to stand on my own heels. I have to be myself because मेरी खुशियाँ मेरे हाथ में है. Nobody is running my kitchen. I have to run my own kitchen, Adi. So simultaneously, you have to run your own kitchen. True. We are not here to discard anybody. जैसे मैंने कहा, हर इंसान अच्छा होता है, circumstances इंसान को बुरा बनाते हैं. That's true. With that, it has been pleasure talking to you. Oh my God, you have talked like anything. Your message to people, Rohit, and we are looking forward for the new shows that you're coming up with. बिल्कुल दिल से तमन्ना ख्वाहिश यही है कि आप हमेशा आबाद रहें. Thank you. और बिल्कुल अच्छे से जैसे इंडिया को, आपने भारत को जिंदा रखा है अपने शोज में. दैट इज कमेंडेबल. And I'm very sure you will be. I will not be shocked to see you if you get a national award for your shows. Oh, thank you very much. You know, thank you, Adi. I'm not gonna be very shocked. Thank you very much, Adi. You're very kind. You're a lovely person yourself. Stay blessed. Stay the way you are. You know, you are a creator. You are gorgeous. You are captivating. So you are beautiful person inside out. Well, I always believe, you know, your strength will never come lifting the weight in the gym. Your strength will come within your own self whenever life will knock you down. In that way, I'm signing up. Jai Shri Krishna.